پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے مبارک اور افضل ترین نام میں ناظرین اور سامعین، خدا کے چنے ہوئے لوگوں، یہ خاکسار خادم آج شب پھر آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور شکر گزار ہوں خداوند اپنے خدا کا کہ یک بار پھر مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ سبوں کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی گہری، عمیق، بابرکت اور خوبصورت باتوں کو سیکھنے والا ہو سکوں۔ ہماری اسکائپ آئی ڈی پر خدا کے عظیم مومن بھائیوں اور بہنوں نے پرستش کی ہے، اس کے وسیلہ سے میں برکت پایا ہوں، دعائیں ہوئی ہیں، یقیناً رب العزت نے ان دعاؤں کو سن لیا ہے۔ اور اب جب ہم خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں تو آئیں ہم اپنے ذہنوں کو کھولیں، اپنے دلوں کو تیار کریں، اپنے کانوں کو کھولیں تاکہ ان حوصلہ افزا اور امید کی باتوں کو آج اس قلیل سے وقت میں ہم باہم مل کر سیکھنے والے ہوں۔ بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب یعنی یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے مکاشفہ کی کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ 21 باب میں ہے اور آج میں آپ کے ساتھ مل کر 4 آیت پر غور کروں گا، صرف ایک آیت یعنی آیت 4 21 باب کی۔ 21 اور 22 ابواب مسیحی مومنین کو جو ان کی ابدی منزل ہے، ان کی ڈیسٹنی، ان کی امید، اس سے متعلق ہمیں بتاتے ہیں۔ اور ان 2 ابواب میں اتنا کچھ ہے کہ ہم سیکھتے چلے جائیں اور ہم اور زیادہ ایمان میں مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم چونکہ مختصر طور پر غور و خوض کرتے ہیں، اس لیے دھیرے دھیرے مطالعہ کرتے ہوئے گزرے 4 سے 5 سالوں میں ابھی تک ہم 21 باب کی 4 آیت تک پہنچے ہیں۔ اس 4 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اس سے پیشتر مقدس یوحنا ہمیں مختلف طریقوں سے سکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا مناظر دیکھے ہیں۔ آیت 3 کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کے تخت پر سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے بیچ میں درمیان میں ہے، اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ سکونت کرے گا، وہ اس کے لوگ ہوں گے اور وہ آپ ان کا خدا ہوگا، اور خدا کے لوگ باہم مل کر رہیں گے۔ اگر آپ نے یہ بائبل سٹڈی ابھی تک نہیں سنی
या फेसबुक पर लाइव नहीं देखी, तो बेहतर होगा कि मेरी मुकाशफा की किताब के यूट्यूब चैनल यानी अब्दी बादशाह ABDIBADSHA को सब्सक्राइब करें और पहले बाब की पहली आयत से जहां तक हमने मुतालिया किया और कर रहे हैं, यह सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। और अगर फेसबुक को भी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो आयत 3 की तफसीर आपको जरूर मिलेगी। मुकद्दस यूहन्ना पस मंजर को बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब खुदा का खेमा यानी खुदा बजाते खुद अपने लोगों के बीच में होगा और खुदा के लोग खुदा के होंगे और खुदा उनका खुदा होगा, तो कैसा खूबसूरत समा होगा जहां मुकद्दसीन खुदा के साथ सकूनत करेंगे। इस आयत को मद्देनजर रखते हुए जब हम आयत 4 पर जाते हैं तो हम वहां देखते हैं कि उन मुकद्दसों के साथ खुदा क्या करेगा, क्या नहीं होगा। इस पर हम आज बात करेंगे और क्या होगा इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन जरूर है कि हम अपनी तवज्जो कलामे खुदा की तरफ लगाने वाले हों। याद रखिए कि जो नई जमीन और नया आसमान है, यह तो उससे मुताल्लिक हम सब कुछ देख रहे हैं। एक नई जमीन और नया आसमान। इस नई जमीन और इस नए आसमान पर अब उन पुराने दुखों का होना नामुमकिन है। और मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि जब तक मैं और आप इस दुनिया में हैं, हमारे आंसू नहीं बहेंगे, हम दुखी नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम मायूस नहीं होंगे, हम टेंस नहीं होंगे, हम डिप्रेस नहीं होंगे, हम बीमार नहीं होंगे, हम सताए नहीं जाएंगे और हमें कत्ल नहीं किया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसकी गारंटी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन खुदा के पाक कलाम को बुनियाद बनाते हुए इस बात की गारंटी जरूर दे सकता हूं कि चूंकि खुदा सादिकुल कौल है और उसकी बातों में कोई तजाद नहीं है, बशर नहीं कि वो झूठ बोले, इसलिए जब हम उस अब्दी मकाम में होंगे खुदा की हजूरी में, उस नई जमीन और नए यरूशलेम में, वहां पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं खुदा के कलाम को बुनियाद बनाते हुए कि इनमें से कोई भी चीज वहां पर नहीं होगी। इस बात को अच्छी तरह मलहूजे खातर रखने की जरूरत है। और फिर मुकद्दस यूहन्ना यहां इस बात का इंकशाफ करते हैं, एक तो यह कि वहां पर आंसू नहीं होंगे, दूसरी बात मौत नहीं होगी, तीसरी बात मातम नहीं होगा, चौथी बात आहो नाला नहीं होगा और पांचवी दर्द नहीं होगा। और फिर छठी बात, जो पुरानी चीजें हैं वो तमाम की तमाम जाती रही है।
ये जितनी बातें इस आयत 4 में मुकद्दस यूहन्ना रूह अल कुद्स की तहरीक से मेरे लिए और आपके लिए लिख रहे हैं, इन तमाम बातों में आप इस बात को क्लियरली और वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि उस नए आसमान और नई जमीन में मौत, आहोनाला, आंसू, दर्द, मातम ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इन सब का ताल्लुक उस पुरानी दुनिया, पुरानी जमीन, कदीम जमीन से है, जो गुनाह के सबब से आलूदा हुई है, यानी प्रेजेंट जो मौजूदा जमीन है, इसकी बात है। आज दुनिया में रंजो गम, मौत, ज्यादतियां, जंगो जदल, कत्लो गारत, खून खराबा, मजहब के नाम पर हलाकतें, इज्जतों का सरे बाजार नीलाम किया जाना, इंसानी हयात के कदरदां ना होना, ये तमाम बातें आज की इस दुनिया में है। इवन जो कुछ आप तसव्वुर करना चाहें आज की दुनिया में, वो सब कुछ मौजूद है। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि ये पुरानी दुनिया है, और जब तक हम नई जमीन और नए आसमान में दाखिल हो नहीं जाते, ये सब कुछ जूं का तूं रहेगा। जब खुदा अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ देगा, तो इससे मुराद ये नहीं है कि वहां पर रोना होगा, नो, क्योंकि खुदा आंसुओं को पूछेगा तो क्या इसका मतलब है कि वहां पर रोना होगा? नहीं 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 नहीं, इससे मुराद यह है कि चूंकि ये कदीम दुनिया, ये पुरानी दुनिया जो गुनाह के सबब से आलूदा हो चुकी है, इसमें रंजो गम, मातम, आंसू, हक तलफी, लड़ाई और झगड़े, ज्यादतियां, मोमिनीन का सताया जाना पाया जाता है। लेकिन चूंकि हम नई जमीन और नए आसमान में होंगे, तो खुदा का आंसुओं का पूंछ देना से मुराद यह है, यह माजी की पुरानी चीजें अब जाती रहेंगी। अब एक नया आगाज होगा नई जमीन और नए आसमान पर। यह खुदा की तरफ से होगा। जब हम आंसुओं से मुताल्लिक बात करते हैं, और अगर हम इनसे मुताल्लिक जानना चाहें, तो फिर यूहन्ना 11 बाब में मरियम और मरथा के भाई की मौत के सबब से जो आंसू बहे, उनको देख लीजिए। और आज भी की दुनिया में भी बहुत सारे लोग अपने अजीजों के इस दुनिया से चले जाने के सबब से आंसू बहाते हैं। नाइन की बेवा को देखिए, कैसे वो अश्कबार थी। इवन जब हम यर्मिया नबी को देखते हैं, उसको रोने वाला नबी कहते हैं, क्योंकि वो अपनी कौम के लिए रोता और खुदा के हुजूर नौआ करता था। इवन खुदावन यीशु मसीह भी शहरे यरूशलेम को देखते और अश्कबार हो जाती हैं उनकी आंखें, क्योंकि आप जानते थे कि इस
पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। इज़ार सा मोमिनीन और उनके खानदानों से पूछिए, हम अभी तक उस इज़ार सानी से दो चार नहीं हुए। इब्तदाई कलीसिया के मोमिनीन और चर्च हिस्ट्री में सताए गए मोमिनीन की तारीख को देखें कि किस तौर पर उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और उनकी आंखें अश्कबार भी हुई है। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप जो मेरे साथ मिलकर इस वक्त खुदा के कलाम की बातों को सीख रहे हैं, मैं भी और आप भी, इस बात पर से मैं पर्दा उठाता चलूं कि अगर आज की दुनिया में मुझ कमजोर पर और आपके साथ ज्यादतियों के अलम और पहाड़ टूटते हैं, हम सताए जाते हैं, अगर आपकी आंखें अश्कबार होती हैं, आप खुदा के हुजूर रोते भी हैं, शायद बीमार हैं और ऐसे कि फिलहाल शिफा दूर दूर तक नजर नहीं आती, और आप रोते हैं कि ना मालूम अब इसका हल क्या होगा। आपके सामने कई ऐसे पहाड़ हैं जिनको तय करना आपको मुश्किल नजर आ रहा है, और सोचते हैं कि ये कब पहाड़ सरकेंगे और मेरी आंखों से आंसू पूछे जाएंगे या सूख जाएंगे। शायद आपका कोई अजीज और अजीजा आपको छोड़कर इस दुनिया से चला गया और आपके दिल को ठेस लगी, टूट गया है। शायद खानदान में कोई ऐसी आग लग गई हो जिस सबब से मेरे भाई और मेरी बहन आप इंतहाई गमनाक हैं और आप रोते हैं, खुदा के हुजूर आंसू बहाते हैं। शायद कोई ऐसी चोट लगी, शायद किसी और तरह की कोई आजमाइश, शायद अपने बच्चों के लिए, शायद अपने शोहर के लिए, शायद अपनी बीवी के लिए इंतहाई आप टूट चुके हों और अब कोई और रास्ता नजर नहीं आता। सोचते हूं कि अब क्या होगा। मेरे अजीज भाई और बहन, मैं आपको यह बात बताता चलूं कि इस दुनिया में ईमानदार खुदा के लोगों के लिए जो मसीह यस्सु में है, दुख और तकालीफ और मुसीबतें और आजमाइशें हैं। मुझे और आपको इस तंग दरवाजे से गुजरना लाजिम है, लेकिन याद रखिए वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम इस तंग दरवाजे से दाखिल होने के बाद एक ऐसी मुमलकत और बादशाही और सल्तनत में दाखिल होंगे जहां इस दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी हमें छू नहीं पाएगा। हम एक जलाली बदन में होंगे, जिस बदन में इस तरह की कोई लानत नहीं होगी। ना वहां बीमारी, ना शुगर, ना कोविड-19, ना कैंसर, ना हार्ट प्रॉब्लम, नथिंग। वहां पर मौत नहीं होगी। अब्दुल आबाद, खुदा के साथ हमारी रफाकत होगी और हम जीते रहेंगे। वहां रोना
और आहो नाला और दर्द और दुख और तकलीफ नहीं होगी। इस आयत में मेरे लिए और आपके लिए तसल्ली की बातें हैं, और ये खुदा की तरफ से तसल्ली की बातें हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मुकाम तैयार कर रखा है, जिस मकाम पर तुम इस दुनिया में जिन आजमाइशों से दो चार होते हो, वहां पर ऐसा हरगिज नहीं होगा। और ये तो मकाशफा 21 की 4 की बात है, लेकिन अगर मैं 22 बाब और उसकी 3 आयत में देखूं तो सुनिएगा, लिखा है, और फिर लानत ना होगी और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। फिर लानत न होगी, यानी मौकूफ हो जाएगी। और ना सिर्फ ये अहद जदीद यानी मकाशफा की ही बात है, बल्कि जब मैं यसाया नबी का सहीफा और उसका 25 बाब देखता हूं, यसाया 25 बाब, तो वहां भी नबुवती सूरत में इस अहम तरीन मुकाम यानी नए आसमान और जमीन, नई जमीन से मुताल्लिक हमें झलक मिलती है। यसाया 25 की 8 में लिखा हुआ है, वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। हालेलुया। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पूंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। ऑलरेडी ये कहा जा चुका है। और होसिया नबी का सहीफा और इसका 13 बाब और इसकी 14 आयत में भी यही बात हमें नजर आती है। अगर हम गौर करें तो 13 की 14 यहां पर लिखा है, मैं उनको पाताल के काबू से निजात दूंगा, मैं उनको मौत से छुड़ाऊंगा। ए मौत तेरी वबा कहां है, ए पाताल तेरी हलाकत कहां है, मैं हरगिज रहम ना करूंगा। और फिर यही बातें मुकद्दस पौलुस करंथुस की कलीसिया को लिखे हुए खतूत में बयान करते हैं, और एक बार नहीं, उन्होंने मुतअद्दिद बार इन बातों का जिक्र किया है। पहला कुरिन्थियों और इसका 15 बाब और इसकी 16 आयत देखिए, 15 की 16 यहां पर लिखा हुआ है बड़े वाज़े तौर पर। एक वादा है खुदा के लोगों के साथ, और वो वादा क्या है? जी उठने और ऐसे मकाम में दाखिले से मुतालिक। 15 की 16, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। और फिर आगे मसीह में उम्मीद की बात हो रही है, आयत 18 और 19 में। ये बड़ी अहम तरीन बातें हैं मेरे लिए और आपके लिए, जिन पर गौर करने की जरूरत है। एक नई उम्मीद है खुदा के लोगों को जो दिलाई जा रही है। और अगर इसी 15 बाब और इसकी 54 आयत से मैं देखूं तो यहां पर लिखा है, ये फानी, और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा,
जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहां है? ए मौत तेरा डंक कहां रहा? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। अजीजों, यसाया की ही बात को मुकद्दस पौलुस यहां पर कोड करते हैं, होसिया की बात को कोड करते हैं और बयान करते हैं कि वो वक्त वो होगा जब फिर मौत फतह का लुकमा हो जाएगी और फिर एक अबदी जामा, एक नया जामा, जलाली जिस्म का ईमानदार जो मसीह में है वो पहनेगा और फिर उस नए यरूशलेम में नए आसमान और नई जमीन में दाखिल होगा। आज इस कलील से, इस सबक से मेरे लिए और आपके लिए यह बड़ी उम्मीद की एक बात नजर आती है, और वो ये कि वो जो मसीह यीशु में हैं उनके लिए अबदी तसल्ली और अबदी सुकून की उम्मीद है। लेकिन मेरे नाज़रीन और सामईन, अगर आप में से कोई ऐसा है या ऐसी है कि खुदा की तरफ से गुनाहगार इंसान के लिए किए गए निजात के इंतजाम को बजरिया यीशु मसीह कबूल नहीं किया, तो आप तारीकी में हैं, जहन्नम की राह पर गामजन है। खुदा के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है और वो रास्ता खुदाबंद यीशु मसीह है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए अगर ये बातें आज आपके दिल में उतर गई तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप क्रिश्चियनिटी को कबूल न करें, आप क्राइस्ट को कबूल करें। मसीहियत को भले कबूल ना करें, ना ही जरूरत है। मसीह को कबूल करें, क्राइस्ट पर, मसीह पर ईमान लाएं और अबदी मुआफी, अबदी हयात और अपनी अबदी मंजिल को हासिल कर लें। वो मकाम जहां पर ना आंसू है, ना मौत है, ना दुख है, ना दर्द है, ना कोई और तकलीफ। अंधेरे में ना रहें, तारीकी में ना रहें। ये ना सोचें कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरे रिलेटिव्स, मेरा रुपया पैसा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा। नहीं, कलाम मुकद्दस में आया है, अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फायदा। फैसला कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि अभी और इसी वक्त आप मसीह यीशु को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर लें, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आप अपने दिल में चाहे तो आंसुओं के साथ दुआ करते हुए मसीह यीशु को अपने दिल के तख्त पर बिठा सकते हैं। हम दुआ करें। कादिर मुतलक आसमानी बाप, शुक्रगुजार हैं आपकी इस अजली और अबदी मोहब्बत के लिए और इस बात के लिए कि आपने अपने लोगों के लिए वो मकाम तैयार किया हुआ है जहां पर मौत नहीं है, बीमारी नहीं है, दुख नहीं है, ज्यादती नहीं है, सताया जाना नहीं है, बल्कि सुख और चैन और राहत और आराम है। खुदावन, हम शुक्रगुजार हैं उस मकाम के लिए
जिसका आपने अपने लोगों के देने का वादा किया है। ऐ खुदावंद में उन तमाम अजीजों के लिए भी जो इस बाइबल स्टडी में शरीक तो हैं, लेकिन अभी तक अपना दिल आपके स्पुर्द नहीं किया। ऐ खुदावंद मिन्नत करता हूं, पाक रूह की कुदरत के वसीला से उनकी जिंदगी में आप गहरा काम कीजिए, ताकि वो अपने आप को पूरे तौर पर आपके स्पुर्द करें और उनके जीवन से आपके नाम को जलाल और इज्जत मिलता चला जाए। खुदावंद मुमकिन कीजिए कि ये सारी धरती निजात के इंतजाम को कबूल करे, क्योंकि आप किसी बशर की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि ये कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। अपने लोगों को संभालिए, बरकत दीजिए और हम सबों को ईमान पर कायम रहने और अपनी पोशाक की हिफाजत करने का फजल अनायत फरमाइए। ऐ खुदावंद उन तमाम के लिए भी जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट्स, दुआया दरखास्तें लिख रहे हैं, उन सब को आपके पाक और बुजुर्ग हाथों में सौंप देता हूं। खा वो किसी ही किस्म की टेंशन से दो चार क्यों नहीं, खा वो किसी ही किस्म की बीमारी और दुख और तकलीफ से दो चार क्यों नहीं, अपने लोगों को इस कांटे के बर्दाश्त करने का फजल अनायत फरमाइए। और अगर आपकी मर्जी हो तो इसको रिमूव भी कीजिए, ताकि आपके लोग आपके हुजूर शुक्रगुजारी करने वाले हों। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। जिंदा मसीह के जलाली और फतमन नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। फिर मिलेंगे, लेकिन जब खुदावंद की मर्जी होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।